Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Mohammad Shahrukh and I welcome you from the platform of KIP CSS Network. Today we have Sabi Ahmed with us, who has secured 16th position all over Pakistan and has been allocated to the PAS group, which is also called Pakistan Administrative Service. Thank you so much for being with us today, Sabi. Thank you for having me. कैसा लग रहा है आपको, आपके जब रिजल्ट आया, क्या तासुरात थे, क्या थॉट्स थे? Could you tell us a bit about your reaction? So generally as with everyone थोड़ा सा overwhelming सा reaction था, क्योंकि honestly इतना paranoia है इसके मतलब इर्द गिर्द, तो बंदा expect नहीं कर रहा होता कि इस तरह का रिजल्ट आएगा. लेकिन I'm thankful to my family, to my friends and to my teachers. रिजल्ट बड़ा एक unexpected day पे आया, Saturday को, nobody was expecting. So when you initially found out, were you in a state of disbelief? या आपके क्या thoughts और तासुरात थे? Who broke the news to you? How was it? So it's a funny story because as you said कि वो एक unexpected day पे आया, तो I was not in Lahore. मैं गांव में था because it's wheat harvest season, तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था, मतलब करवा रहा था. तो I actually got to know around 1-2 घंटे बाद, क्योंकि वहाँ पे signals थे नहीं. तो by the time मुझे पता चला तब तक सबको already पता था. तो I was probably the last one in my peers to know. तो there was a friend who unfortunately couldn't get qualified, very able candidate. वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने he broke the news to me. Right, wonderful. अच्छा Sabi, so before we actually talk about CSS, we would like to know your prior educational background. आपने बैचलर्स कहाँ से किया, मास्टर्स कहाँ से किया, स्कूलिंग कहाँ से थी? Could you just tell us a bit about that? So my entire schooling is from Beacon House, Garden Town. और उसके बाद for my A levels I went to LGS Johor Town. और उसके बाद I have done my bachelor's in accounting and finance and film from LUMS. अच्छा, you're also from LUMS? Yes, I'm from LUMS. Which batch? 2021. So I graduated back in 2017. So you just graduated. Yes, yes. Great. अच्छा, आपने अपना मास्टर्स नहीं किया हुआ? अभी मास्टर्स नहीं किया है, एक्चुअली अप्लाइड, अब पता नहीं क्या होगा. ठीक है, कहाँ पे अप्लाई किया हुआ? So I applied to the Fulbright program, तो अभी रिजल्ट So I'm assuming आपने ONA levels किया हुआ है. Yes. And what were your grades in ONA levels? Straight A's, almost सारे. You've been a bright student throughout. मतलब one can say that. So it didn't come as a shock when you scored 16th position all over Pakistan because you have been accustomed to these top surprises और इस तरह की चीज़ें. So I would like to believe so. पता नहीं. Great. अच्छा सभी ये बताएं कि आपकी CSS की I believe second attempt थी. Second. First attempt में आपके subjects क्या थे and what went wrong in your opinion? How was it? आपने तैयारी खुद की, कहाँ से की? और सेकेंड अटेम्प्ट में आपने स्ट्रैटेजी क्या डिवाइस की कि मैं वो गलतियाँ ना दोहराऊँ? सो अगेन जस्ट टेल अस अबाउट योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड योर ऑप्शनल्स एंड व्हाट डिड यू चेंज इन द सेकेंड अटेम्प्ट? Okay, so my optionals remained the same in both attempts. They were accounting, accountancy, business administration, sociology, gender studies and criminology. So I played पहले भी जब I selected my subjects because as I told you my degree is in accounting and finance और humanities का मुझे वैसे बहुत शौक है, minored in film. तो उस वजह से आई कैपिटलाइज ऑन माई स्ट्रेंथ्स एंड माई मतलब प्रेफरेंसेस. लेकिन इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई कुडंट क्वालिफाई, आई कुडंट क्लियर दी एसे. तो द ओनली थिंग दैट आई चेंज्ड इज, आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, बट इट वाज हेल्पफुल फॉर मी क्योंकि आई थिंक दैट आई राइट वेल. तो लास्ट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई ट्राइड टू राइट एज ब्यूटिफुली एज आई कुड. And I tried to attempt a topic जो कि थोड़ा सा unconventional था, but that didn't work out well for me. और इस दफ़ा I tried to write as simplistically as possible, and I chose the most mundane topic of all, और उसने help दे दी. So probably. So first attempt में सिर्फ essay आपका मसला हुआ, बाकी overall were you happy with the scores overall? In my first attempt, yes, I had very good marks in my first attempt. और last year तो. और दूसरा ये कि essay में सभी ये बात कर रहे हैं कि essay में उन्होंने कोई major strategy change नहीं की. He just tried to write as simply and as beautifully as possible, if I were to put it. और दूसरा, he chose a topic that did not belong to the proverbial category. Exactly. So you went for something that is very straightforward because you could not afford to risk it again. Yes. That's a takeaway for the aspirants as well कि ज़्यादा अगर आप unsure हैं proverbial topics के बारे में, ज़रा उनको हाथ ना मारें क्योंकि वो dangerous हो सकते हैं. That was me in my first attempt. That was you in your first attempt. But अब सभी हमने देखा है कि CSS में ही ज़्यादा proverbial topics रहे हैं. So what would you like to say on that? I would How say, should a candidate choose the topic और क्या strategy रखें? So I would say कि if you're choosing a proverbial essay or rather for anything, तो don't choose it just for the sake of standing out because that makes no sense. बिल्कुल. तो लोग कहते हैं कि यार मैं stand out करूँगा, हर बंदा ये topic attempt कर रहा होगा, therefore मैं ये नहीं करता. बिल्कुल. And they end up falling in this
danger zone. Exactly. So this is no reason for choosing a topic. Just choose a topic जहाँ पे आपकी arguments बहुत अच्छे तरीके से frame हो पा रही हैं आपके दिमाग में. तो if that's the case in a proverbial essay for you, तो please by all means choose a proverbial essay. लेकिन अगर वो किसी simple essay या किसी argument based essay या fact based essay के ऊपर आ रही है बात, तो please वो वाला choose कर लें. Just don't choose a proverbial essay just for the sake of standing out. और proverbial भी you have to be dead sure कि आपकी understanding topic के ऊपर पूरी हो, ना कि आप guess work पे rely कर रहे हैं कि शायद ये interpretation है तो मैं इस attempt. Yeah. On that note, also thank you for pointing it out. It is very relevant क्योंकि proverbial essays में because we all know कि examiner का हमें पता नहीं है. There is a lack of transparency in the whole process. तो don't attempt a proverbial essay जहाँ पे multiple interpretations exist कर सकती हैं. क्योंकि अगर आपकी interpretation is not in line with जो कि interpretation examiner की होगी, then you won't score good marks. Thank you for pointing that out. We should always choose topics जिसमें जो है ना minimal chances हैं कोई double meaning या कोई और interpretations के. Just try to go for simple straightforward topics and play on your strengths. Right. So आप क्योंकि O और A levels के background से आए हैं सभी, LAMS में भी आपने जो है वो अपना बैचलर्स किया, तो आई एम अज्यूमिंग आपकी अंग्रेजी ठीक होगी. अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स स्ट्रगल विद बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड स्ट्रक्चर. सो डिड यू हैव टू स्ट्रगल एज वेल? एंड सेकेंडली, बाय एंड लार्ज कुड यू टेल कि एक एस्पायरिंग CSS के बंदे को क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए ताकि वो CSS मिनिमल चांसेस में क्वालिफाई कर सके? सो आई एम प्रिविलेज इन दैट सेंस क्योंकि मुझे एसए में और प्रेसी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एज यू मेंशन्ड और ग्रामर थोड़ी सी कुछ बेहतर थी मेरी बाकियों की निस्बत. लेकिन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अमेजिंग कैंडिडेट्स जिनका प्री रिक्विजिट इस तरह की एजुकेशन नहीं थी एंड दे हैव आउट परफॉर्म्ड अस ऑल. तो आई थिंक इतना मसला नहीं है. आई थिंक इट इज़ वेरी अचीवेबल. हाँ, एक हेड स्टार्ट ज़रूर एग्जिस्ट करता है फॉर समवन जो कि किस तरह के बैकग्राउंड से आता है, लेकिन इट इज़ ओनली अ हेड स्टार्ट. वंस द रेस इज स्टार्टेड तो फिर तो मतलब एवरीवन इज़ ऑन द सेम लेवल. इसके अलावा क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जिन्होंने आपको इनेबल किया इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करने में? फॉर मी, मतलब मेरे लिए एक प्री रिक्विजिट ये था कि मेरे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट क्रिमिनोलॉजी मैंने पहले ही पढ़े हुए थे. मतलब अकाउंटेंसी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी डिग्री थी. में आपकी डिग्री थी? एग्जैक्टली. और सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ वैसे मुझे बहुत शौक था, मैं बचपन से पढ़ रहा था, तो मुझे वो चीज़ें उस ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करनी नहीं पड़ी. और मुझे एक कन्फ्यूजन भी नहीं थी कि सब्जेक्ट्स से चूज़ करते वक्त यार मैंने कौन सा चूज़ करना. You were dead sure because they all aligned with your previous background. Exactly. I only had to choose one subject technically, which was criminology. Right. And that I chose because I liked the name. अच्छा, how did filmmaking help you in CSS? You were talking कि वो भी आपको help किया है. वो किस तरह से आपके CSS की जर्नी के अंदर रोल प्ले किया? So by and large film is a mode of storytelling, right? It is just one sort of storytelling. It is just one form of art. तो technically what I've been doing बचपन से without realizing it, जो कि मैंने यहाँ पे भी किया है, तो कोई भी मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ तो it always follows a story pattern. Like तो मैं इंट्रोडक्शन के अंदर हल्का सा with an anecdote? No, not an anecdotal type. उस तरह की चीज़ नहीं है. But I try to पिंच इन या एक इस तरह का स्टाइलिस्टिक एलिमेंट इंट्रोडक्शन में जो कि फिर मैं पूरे अपने आंसर के अंदर जिक्र नहीं करता हूँ एंड देन आई कम बैक टू इट इन द कंक्लूजन. सो अगर किसी ने पूरा आंसर पढ़ा है ना सही तरीके से, सो देन ही विल फील वेरी गुड जनरली कि इन्होंने स्टार्ट में जिक्र किया था एंड देन ही इज ब्रॉट दैट बैक इन द एंड. जिस तरह वही जब फिल्म स्टार्ट होती है तो शुरू में वो थोड़ा सा उसका एंड का पार्ट दिखाते हैं, इट इज टोटली अनरिलेटेड, and in the midst or the climax or end पे आपको पता लगता है how it all made sense. Exactly. That's the strategy you had been following. Yes, without knowing. अच्छा, since आपने OA levels किया हुआ है तो OA levels में मुझे याद पड़ता है कि हमने ना कभी headings बनाई, ना कभी हमने markers का यूज़ किया, ना हमने red pen या black pen का यूज़ किया. तो CSS के अंदर आके आपको कितना ट्वीक करना पड़ा? सिंस मेट्रिकुलेशन और FSC में तो बच्चों को आदत होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आधा कटा हुआ निब वाला मार्कर भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है उर्दू के लिए. तो हाउ वाज दैट अ चैलेंज या डिड यू इजीली अडॉप्ट दैट स्टाइल सिंस वी वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ आंसर्स, नेवर द प्रेजेंटेशन ऑफ इट. So how did you tackle that? So it came as a shock because there's no one in my family from services background. तो जब मैं यहाँ पे you're the first bureaucrat in your family. Yes. तो जब मैं आया, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तब मुझे पता लगा कि इस नाम की भी कोई चीज़ होती है क्योंकि एज यू मेंशन्ड राइटली हमें नहीं पता था कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या होती है. तो मतलब आई रिमेंबर मैं एक एग्ज़ाम दे रहा, एक जगह मॉक दे रहा था, तो लाइक अ पर्सन वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी और उसके पूरे एक हाथ के अंदर मार्कर्स और पेन्स थे. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतने ज़्यादा कैसे यूज़ कर सकता हूँ एग्ज़ाम में और मार्जिन्स ड्रॉ करने एंड ऑल. तो द ओनली थिंग मैं उस तरीके से सही तरह अडॉप्ट शायद नहीं कर पाया क्योंकि इट वॉज अगेंस्ट
हाउ वी वर ट्रेंड बचपन से। तो मैंने सिर्फ ये किया था कि थोड़ा सा ट्वीक ये किया था कि आई ड्रू मार्जिन्स, तो मैं थोड़ा सा जल्दी चला जाता था ताकि मार्जिन्स जल्दी ड्रॉ हो जाएं पेंसिल से। उसके अलावा आई जस्ट यूज वन सिंपल मार्कर, निब कटा वाला नहीं यूज़ किया, एंड अ ब्लैक पॉइंटर एंड अ ब्लू पॉइंटर। तो मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन आई नो पीपल जो कि बहुत ज़्यादा करते हैं, मे बी इट हेल्प्स देम, बट आई डोंट पर्सनली थिंक कि इससे बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग लेवल पे फ़र्क पड़ता है कोई। बट थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और वो चीज़ें मैटर करती हैं, ज़ाहिर है सीएसएस की सर्टेन स्टाइल है, एग्जामिनर को आदत होती है डेफिनेटली, बट कंटेंट विल ऑलवेज बी द किंग आई थिंक। राइट। अच्छा, कंटेंट की आपने बात की, सिंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स बिलीव कि नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए एग्जाम में, हैविंग गॉन थ्रू दिस जर्नी माई सेल्फ, हैविंग क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, और मैंने कुछ और पोजीशन होल्डर से भी पूछा है, वो कहते हैं सीएसएस का जो रिटन पार्ट है ना, दैट इज़ अ टेक्निक more than knowledge. You need to master the art of writing and presenting your answer in a format which is, which gets the maximum marks. So to what extent do you agree? क्या knowledge, I'm not saying knowledge important नहीं है, but एक technique है जिसको crack करना है अगर CSS है, तो आपका क्या ख्याल है उसमें? अच्छा, सो इवन इफ़ वी टॉक अबाउट CSS या इस तरह के कंपेरेबल एग्जाम जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में हैं, तो देयर इज़ दिस नोशन कि ये एक टेक्निक है जो कि आपने क्रैक करनी है। बिल्कुल। और आई थिंक दैट मोर देन 90% ऑफ द पीपल बिलीव इट टू बी सो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इज़ एंटायरली ऑपोजिट। आई डोंट थिंक कि कोई टेक्निक है, बिकॉज एज आई मैंशन पहले भी थोड़ा सा फ़र्क है आंसर कि आई थिंक द कॉन्टेंट ऑलवेज विंस। तो मेरा नहीं ख्याल कि टेक्निक है, क्योंकि मैंने कोई टेक्निक नहीं फॉलो की। So can we assume you had a natural flair and a natural ability to present your answer in a certain format which kind of aligned with the examiner कि यार हाँ, this kind of makes sense. So considering that I'm a storyteller of sorts and a filmmaker, you can assume कि शायद मेरा जो एक natural unconsciously आपका natural flow जो है वो क्लिक कर गया और it all made sense. It all made sense. तो मतलब मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, वो मेरी DMC उन्होंने देखी, तो वो यही पूछ रहे थे कि आपने पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की थी। तो मैंने उनको बताया कि मैंने नहीं की थी क्योंकि मैं लिखने पे इतना ज़्यादा फोकस होता था कि मुझसे फ्लो चार्ट में सोचता था अगर मैंने फ्लो चार्ट डाला ना तो इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं मिस आउट कर दूँगा। तो मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, बट अगेन शायद माई राइटिंग स्टाइल मेड सेंस टू द एग्जामिनर्स, तो इस वजह से कुछ बेहतरी हो गई। बट हो सकता है आपकी कंटेंट की जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी थी दैट इट काइंड ऑफ मेड अप फॉर ऑल द अदर थिंग्स दैट वर काइंड ऑफ मिसिंग इन योर So now because of the lack of transparency in the process, हम कुछ भी assume कर सकते हैं, it is all hyperbole now. तो अब हमें पता नहीं है कि exactly चीज़ क्या है जो कि stand out की, but कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। सही। तो वो क्या चीज़ है पता नहीं। अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी जो DMC है, आपके सबसे अच्छे मार्क्स किस सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स में आए हैं? जेंडर स्टडीज़ आई थिंक। जेंडर स्टडीज़। उसके अलावा आई थिंक आई हैव गुड मार्क्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आई हैव गुड मार्क्स इन करंट अफेयर्स। And talking about gender studies and let's say business administration, did you consciously do something in these subjects which you didn't do in others, या फिर by stroke of luck अच्छे मार्क्स आ गए हैं? थोड़ा सा बताएं कि मार्क्स उठाने का क्या तरीका है आपके जेंडर स्टडीज़ में? मार्क्स तो बताएं ज़रा कितने हैं जेंडर स्टडीज़ में? मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट आई थिंक नो दे आर 85 और 84। ऑलमोस्ट अ परफेक्ट स्कोर जेंडर में, मे बी सो। तो क्या आपको लगता है हेल्प किया इतने मार्क्स उठाने में आपको बिजनेस एड और जेंडर वगैरह में? So I think I'm generally, because you're from LUMS also, so there throughout my time at LUMS, I think generally it is a very good place for having conversations and for having discussions. And also gender disparity is one of the most talked about things in that in that place. तो जनरली हमने अपने 4 साल वाले वहाँ पे टेन्योर के अंदर इतनी बातें की हुई थी उसके ऊपर, इतनी डिस्कशंस की हुई थी, इतनी डिबेट्स की हुई थी, प्लस इन एडिशन टू दैट एज आई टोल्ड यू के सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ आर समथिंग दैट आई वॉज जनरली पैशनेट अबाउट, बचपन से मैं पढ़ रहा था। तो आई थिंक इट ऑल एडेड अप, एंड व्हेन मैंने कुछ स्टोरी वाले एलिमेंट्स बीच में डाल दिए तो शायद वो चीज़ है जो कि स्टैंड आउट कर गई। तो मेरा ख्याल है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट डोंट ट्राई टू स्कोरिंग ट्रेंड ठीक है, एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट ऑलवेज अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू परफॉर्म बेटर उसके अंदर, बजाय उसके किसी एक चीज़ को आप चूज़ करें जहाँ पे सिर्फ स्कोर आ रहा है। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज़ किया है बिफोर जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक फ्रेज यूज़ किया भी स्कोरिंग ट्रेंड का। बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती ये क्या बला है, ये किस चीज़ को कहते हैं। A lot of people who are entering this field, they are like scoring trend का क्या सीन होता है, क्या subjects target होते हैं। So could you briefly shed light on what it is and how you have to kind of select your optionals?
बेसिकली आई एम आस्किंग यू क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और स्कोरिंग ट्रेंड क्या होता है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है आपके टोटल स्कोर पे? सो स्कोरिंग ट्रेंड इज़ बेसिकली कि एक टाइम पीरियड के अंदर ऐसा चल रहा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर जनरली एक अच्छी मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप जितना मर्जी अच्छे परफॉर्म कर लो उसमें जनरली एक जो थ्रेशोल्ड ऑफ मार्क्स है वही लोअर है, बेंचमार्क ही लोअर है। तो उस वजह से कई कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ट्राई टू चूज सब्जेक्ट्स जहाँ पे जनरली स्कोर ज़्यादा आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आपका मेरिट तो आपके ओवरऑल स्कोर पे बनेगा। पिछले सालों का ट्रेंड देखते हैं। तो मैंने नहीं देखा था, और आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग। अगर आपने किसी ना किसी तरीके से एग्ज़ाम को मतलब सक्सीड करना ही है तो फिर इट इज़ अ फैक्टर दैट यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। But you purely followed your interest in your heart. My interest, my heart and my expertise. And that did wonders for you. That did wonders. इसके अलावा सभी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ऑप्शनल्स को सिलेक्ट करते हुए? एक इंटरेस्ट की आपने बात की, स्कोरिंग ट्रेंड हो गया, बैकग्राउंड हो गया. Are there any other things that you think candidates should consider while selecting the options? I think ये जो तीन चीज़ें आपने मेंशन की हैं, this right about sums all it up, के मतलब बैकग्राउंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और अगर ये दोनों चीज़ें शायद आपके लिए उतना वैल्यू नहीं रखती हैं तो फिर स्कोरिंग ट्रेंड हो गया। आई थिंक ये तीन चीज़ों में सब कुछ इनकैप्सुलेट हो जाता है। अच्छा, सो वी वुड लाइक टू नो द मेजर रिसोर्सेज दैट यू कंसल्टेड, स्पेशली एक एस्से, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए, जेंडर वगैरह के लिए। ओवरऑल आपने ज़्यादा बुक्स पढ़ी, यूट्यूब चैनल्स, थिंक टैंक्स, किस तरह की चीज़ों को कंसल्ट किया? बिकॉज मार्केट में तो बड़ी घिसी पिटी बुक्स हैं, आपको पता है अच्छे रिसोर्सेज की गेम है, अब CSS पे ओपिनियन होना चाहिए आपका। सो कुड यू टेल अस अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट यू थिंक प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल इन योर सक्सेस? सो देखें, एज यू सेड के मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड हर एक की क्वालिटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आई थिंक इन दिस डे एंड एज द डिजिटल रिसोर्सेज आर लाइक मतलब द फोरमोस्ट। आप कुछ भी आपको पता करना है, यूट्यूब इज़ द प्लेस टू गो। बिल्कुल। तो लेकिन उसका एक थोड़ा सा इशू ये होता है कि मतलब ऑलवेज़ हैव योर ओन ओपिनियन ऑन एनीथिंग, क्योंकि कोई भी बुक आप पढ़ेंगे, कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे, न्यूज़ पीस पढ़ेंगे, या वो बायस्ड होगा। तो अगर आपको अपना, या तो आपके पास प्री रिक्विजिट थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली, या आपका अपना ओपिनियन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यू विल बी मोर प्रोन टू टेकिंग द अदर पर्सनस ओपिनियन, और इट्स नॉट ऑलवेज के वो ओपिनियन ठीक ही होगा। तो ऑलवेज हैव अ मतलब अनबायस्ड अप्रोच व्हेन यू रीडिंग एनीथिंग, कुछ भी हो। उसके अलावा रिसोर्सेज में अगेन मेरे पास मोस्टली रिसोर्सेज तो मेरी यूनिवर्सिटी और A levels O levels से ही चल रही थी, तो मतलब आई हैव नॉट कंसल्टेड अ लॉट मैनी रिसोर्सेज। लेकिन if you were to name a few from the top of your head कि यार दो चार चीज़ें, दो थिंक टैंक्स थे, ये चैनल्स थे, आपके गो टू प्लेसेस क्या थे while you were preparing? ओके, सो देयर इज दिस चैनल ऑन इंस्टा, मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज, वो एक बहुत अच्छा है फॉर सोशियोलॉजी। अगर इवन दो मुझे पता है स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से आजकल सोशियोलॉजी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता है तो एक शंकर राज की बुक है सोशियोलॉजी, बाय द नेम ऑफ सोशियोलॉजी, वो एक बहुत अच्छी बुक है। एंड उसके अलावा आई थिंक ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर आप कौन सा, डॉन पढ़ रहे थे? मैं डॉन पढ़ रहा था। आई स्टार्टेड वेरी लेट, लेकिन इट्स अ वेरी गुड एडिक्शन, आई मस्ट से। यू शुड रीड करंट पाकिस्तान अफेयर्स और एस्से के लिए कोई और रिसोर्सेज इसके अलावा? यार एस्से के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क, बिकॉज एज आई मेंशनड आई हैव नॉट ट्राइड टू डैबल अ लॉट विद एसेस, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा इससे, बिकॉज अगेन एज यू मेंशनड आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं मुनासिब लिख लेता हूँ, बट अगेन ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड, जो कि पिछले अटेम्प्ट में शायद हुआ मेरे साथ। सो आई थिंक ऐसे वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि CSS में बहुत मुश्किल हाई-फाई कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी नहीं चाहिए? वी जस्ट नीड टू बी वेरी सिंपल एंड बेसिक इन ट्राइंग टू convey our viewpoint across. Exactly, that's what I mentioned. That's what I mentioned जब ऐसे की बात हो रही थी कि please write beautifully but do not try to write overboard ना चले जाए. Don't try to write as you don't normally do. Write as you normally do. And I think it's more important to put your point across rather than trying to put your point across and not being able to do so. So अच्छा सभी, we wanted to know कि आप माशाल्लाह you've been academically sound throughout your life and you got into LUMS, which is a dream place for so many people in Pakistan. You and I are lucky to be from LUMS. So I wanted to know कि आपकी CSS की तरफ आने की inclination क्या थी, क्या motivation थी, स्पेशली आपकी फैमिली में कोई सर्विंग या एक पुराना पेशा ब्यूरोक्रेट नहीं है जिसने आपको पुश किया होगा? लोग अक्सर कहते हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और लम्स वालों को कि यार आप लोगों की इतने स्टेबल करियर्स हैं, आप लोग कहीं भी जा सकते हैं। सो इसको ज़रा डिबंक करें कि क्यों इस तरफ इंक्लिनेशन है और आपकी मोटिवेशन क्या थी? सो आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। सो मैं कुछ अर्सा पहले एक जॉब इंटरव्यू दे रहा था, तो
वो उसका जो इंटरव्यू स्ट्रक्चर था ना, बिकॉज दैट पर्सन वाज वेरी आल्सो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, तो उनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था कि करंट अफेयर्स भी पूछ रहे थे और इस तरह सारी चीज़ें पूछ रहे थे. तो बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस रिसेंटली, तो थिंग्स वर ऑन द टिप ऑफ माई टंग. तो जब वो ख़त्म हुआ इंटरव्यू, तो द फाइनल थिंग दैट ही आस्क्ड मी वाज के आई जस्ट हैव वन पार्टिंग क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई आर यू स्टिल इन पाकिस्तान. तो दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम लम से हैं, आधा बैच इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है. सर मेरा 80% बैच इस वक्त बाहर है. तो आई हैव नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग, क्योंकि सो आई बिलोंग, आई वोंट से कि मैंने हार्डशिप्स देखी हैं लाइफ में, बट आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. सो व्हेन वी माइग्रेटेड माई पैटर्नल साइड, सो वी डिडंट हैव एनीथिंग, सो it was all built from scratch up, ground up. So also I'm from Old Lahore, so my family still lives there. So I've seen a lot of issues that people face in their daily lives with their experiences with the system, और वो चीज़ों ने मुझे बड़ा बचपन से इम्पैक्ट किया हुआ है. तो आई नेवर इवन कंसिडर्ड गोइंग अब्रॉड. अगर मैंने आपको बताया मास्टर्स भी करने जाना था, तो इट वाज ओनली कि मैं पढ़ने जाऊँ एंड देन आई कम बैक एंड आई वर्क ओवर हियर, सर्व द कम्युनिटी, एंड दैट वाज माय प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ स्टार्टिंग फिल्म मेकिंग एक्चुअली. तो अभी तक मैंने जो भी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, दे परफॉर्म रियली वेल एट फिल्म फेस्टिवल्स. दे आर ऑल टारगेटेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक सोशल इशूज़ दैट आर फेस्ड बाय कॉमन पीपल इन द सोसाइटी. तो मेरा पर्सनल जो मोटिवेशन था, इट वाज ऑल के जो चीज़ें मेरी फैमिली ने या मेरे लोगों ने, मेरी कम्युनिटी के लोगों ने ओल्ड लाहौर में या जनरली पूरे पाकिस्तान में फेस किए हैं, I tried to play my part in making that better for them. So that was my only motivation, और अब हो गया है, तो I hope अल्लाह रास्ते बना देगा मेरे लिए. That is wonderful to know. Could you share आपकी वीडियोस कहाँ पे देख सकते हैं लोग और कहाँ पे वो उसको एक्सेस कर सकते हैं? So I've not uploaded all of them, लेकिन कुछ जो 3-4 मैंने की हुई हैं. It's my channel named Sarab Films. Sarab is like a mirage. ठीक है. तो it's on YouTube, तो आप लोग देख सकते हैं. They've performed well at festivals, so please. Great. So if not CSS, since you wanted to make an impact on society, you wanted to serve the community, so had it not been CSS, आपका alternate career path क्या था? फिल्म मेकिंग की तरफ ही आपने रहना था? फिल्म मेकिंग, yes, 100%. तो अभी मेरा प्लान भी यही था कि अगर ये नहीं होगा तो आई वुड गो और study film and then come back and make films. I also wanted to ask if filmmaking generally in the long run, if you succeed, it's a very lucrative career, I believe, as compared to CSS, जिसमें of course एक certain ceiling है, financially आप बहुत उस तरह से वो नहीं होते और आपके finances tight होते हैं. State takes care of the basic things. So जो लोग कहते हैं CSS में पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे, आजकल तो जितनी तनख्वाह है उतना तो गाड़ी में पेट्रोल डल जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे और उनके बारे में इसको आप किस तरह काउंटर करेंगे? देखिए, अब इसमें मसला ये है कि आई कैन ओनली शेयर माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे नहीं पता. तो वो ये है कि आई हैव small side business as well. ठीक है. I have some savings as well, so I know that I'll be before choosing CSS, I knew all of these things. You knew what you were signing up. तो मैंने पहले अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया था कि अगर मेरा हो जाता है तो क्या मैं अपनी फैमिली को बेसिक सस्टेनेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि नहीं. एंड ओनली व्हेन आई न्यू कि मैं कर सकता हूँ, तब मैंने ये चीज़ चूज़ की है. तो आई थिंक के द थिंग दैट यू पॉइंटेड आउट इज़ वेरी रेलिवेंट, क्योंकि पैसे कम हैं, इसमें कोई शक नहीं है. तो either you have a secondary stream of income which can take care of you, and on top of that you are very very passionate about serving the country, तो तभी आप करें. तो उसमें ये है कि देखें, आई वुड नॉट से आइदर और की कैटेगरी में देखें. CSS के साथ साथ आप टीचिंग ले सकते हो, डेफिनेटली आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, अपनी कोई फोटोग्राफी या कोई और हॉबी फॉलो कर सकते हैं. आजकल आपको पता है वन जॉब डज नॉट सफाइस, आपको पता है जो आजकल एट ऑल. ठीक है. अच्छा, ये बताएं कि जो लोग फ्रॉम स्क्रैच तैयारी स्टार्ट करनी है, सिंस यू हैव थॉरली बीन थ्रू द प्रोसेस, उनके लिए एक छोटा सा रोड मैप ड्राफ्ट करें. अगर आप वर्बली बताएं कि यार पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर इस तरह लेके चलना है चीज़ों को. इफ़ यू कुड गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू कि यार तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, समबडी हु इज एन एब्सोल्यूट बिगिनर एंड एन एमेच्योर. जी, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 12-11 सब्जेक्ट्स हो जाएं या 12 सब्जेक्ट्स हो जाएं तो दे आर टू मच. तो वो दरिया को कूजे में बंद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट अब व्हाट आई फॉलोड एंड व्हाट आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू फॉलो इज़, क्योंकि सिंपल है, वो ये है कि ट्राई टू स्टार्ट वन सब्जेक्ट एट अ टाइम. स्टार्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट्स ना शुरू करें, क्योंकि ओवरवेलम हो जाता है इंसान. एक या दो सब्जेक्ट्स उठाएं एंड ट्राई टू कंप्लीट दोज एज मच एज यू कैन, और फिर आप अगले सब्जेक्ट की तरफ मूव करें. एंड ओनली आफ्टर यू पिक्ड अप पेस, तब आप मल्टीपल 3-4 सब्जेक्ट्स इकट्ठे तैयार करने शुरू करें. एंड वन मोर थिंग विच इज़ कि मैंने देखा है लोगों को, दे प्रिपेयर नोट्स
और फिर वो नोट्स बना के बाद में 1 पेजर्स बनाते हैं, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हो जाता है, बल्कि ज़ाया हो जाता है। तो मेरा तो ए लेवल से एक स्ट्रैटेजी चल रही है कि अब सो माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी स्मॉल, सो एंड आई राइट विद पेंसिल। काम किया होगा बड़ा करने के लिए CSS के? मुझे बड़ी मेहनत लगी वहाँ पे एग्ज़ाम में बड़ा लिखने के लिए, क्योंकि जनरली छोटी है। तो व्हाट आई डू इज़ के मैं जो एक ही दफ़ा नोट्स बनाता हूँ ना, एक तो छोटे होते हैं और तो वो सॉर्ट ऑफ 1 पेजेस मेरे स्टार्ट से ही 1 पेजेस ही बनते हैं, तो बाद में मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ा दोबारा से 1 पेजेस बनाने वही बात, आपका नेचुरल फ्लो ऑफ राइटिंग इस तरह का है कि आपका लॉन्ग से वो 1 पेजर ही बन रहा है। वो 1 और उससे ये होता है कि मतलब आई नो माई सेल्फ, आई नो माई वीकनेसेस। मुझे पता है अगर, क्योंकि 2 एग्ज़ाम्स हैं बैक टू बैक, 2 घंटे की ब्रेक है बीच में, तो मुझे पर्सनली 2 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट गो थ्रू करना है, वरना मुझे लगेगा मुझे कुछ नहीं आता। और अगर वो पूरा रजिस्टर होगा मेरे पास तो मैं जनरली ओवरवेलम हो जाऊंगा कि यार मैं 2 घंटे में पूरा रजिस्टर कैसे करूं। लेकिन अगर वही नोट्स मेरे पास कोई 10 पेजेस के फॉर्म में होंगे तो इट विल बी मेंटली ईजियर। एग्जैक्टली। तो दूसरा ये कि हाउ मच टाइम डू यू थिंक CSS की जर्नी में रिक्वायर्ड है? लॉट ऑफ पीपल टेक 3 months, 10 months, 2 years. आइडियल टाइम आपके नज़दीक क्या होना चाहिए अच्छी तैयारी करके एग्जाम्स को देने का? I think for the first time I think 6 months is a very adequate time, क्योंकि 6 months में you can 6 to 8 months, 6 to 8 very decent, very decent। अच्छी तैयारी करके आप from scratch start भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कुछ अगर मॉक्स वगैरह कहीं देना चाहें अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक 6 to 8 months इज़ अ वेरी आइडियल टाइम, और इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में ही हो जाए तो क्या बात है। आप अभी जॉब की ब्रेक पे हैं, ब्रेक में क्या आपने CSS की जर्नी अपनी प्रिपरेशन जॉब के साथ की? और लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जॉब के साथ मैनेजेबल है या नहीं, इस पे क्या आपका टेक है? देखिए आई नो मैंने फुल टाइम जॉब नहीं की थी जब मैं पहली दफ़ा रिटर्न दे रहा था, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने फुल टाइम थोड़ी सी रिमोट जॉब कर रहा था, लेकिन नॉट एज मच। तो लेकिन आई नो पीपल हु हैव क्वालिफाइड पिछले साल भी इस साल भी who were preparing with jobs, so it is definitely possible but it is not easy at all. अभी we were interviewing Mariam who stood 4th in Pakistan. She was like मैं अपने MBBS के एग्जाम्स दे रही थी, साथ साथ मैंने CSS की तैयारी कर रही थी और उसने प्राइवेट BA दे के और CSS क्रैक कर लिया। बिल्कुल। तो जॉब के साथ बिल्कुल मैनेजेबल है, मुश्किल है बट इट इज़ डेफिनेटली डूएबल। दिन में कितने 4-6 घंटे निकाल लें तो शुरू में विल दैट सफाइस? देखें वो तो अब अगेन इट इज़ डिपेंड्स ऑन द पर्सन, क्योंकि हो सकता है कोई 10 घंटे पढ़ रहा हो और उसमें से प्रोडक्टिव 2 घंटे हो, और कुछ 2 घंटे पढ़ रहा हो उसके 2 घंटे बहुत प्रोडक्टिव हैं। बट आई थिंक जनरली 4 to 5 hours इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर आप स्प्रेड कर रहे हो 8 महीनों के ऊपर, तो 5 से 6 घंटे इज़ अ वेरी डिसेंट टाइम। अगर आप 5 से 6 घंटे दिन में दे सको तो ओवर द कोर्स ऑफ 8 months आई थिंक इट्स। अच्छा, लम्स के लोगों का अक्सर मैंने देखा है कि ज़रा वो अपनी फील्ड में होते हैं, इन द सेंस के वो बस 2-4 जगह जाके फ्लेवर लेके एंड देन दे नो व्हाट टू डू। सो इन योर केस आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या आपने किसी एकेडमी या इंस्टीट्यूट गए, और एक इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है, मेंटोर का क्या रोल होता है, क्या सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए या इदारे के अंदर आना चाहिए डायरेक्शन लेके फिर यू गो टू द सेल्फ स्टडी मोड? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन दिस रिगार्ड? सो माय स्ट्रैटेजी वाज, मैं गया था एक जगह, तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट इज सेल्फ स्टडी। कोई आपको कितना भी पढ़ा ले, देयर ऑलवेज गोइंग टू बी सम लिमिटेशन टू इट। बिल्कुल। या उनकी पर्सनल बायस होगा या आपकी लर्निंग एक लिमिटेशन होगी। तो एक क्लासरूम के अंदर फॉर CSS आई डोंट थिंक के पढ़ने के लिए एकेडमी इज़, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, पीपल कैन डिसएग्री, लेकिन अकेडमी इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट विच इज़ कंड्यूसिव नॉट फॉर यू एसिंग द एग्ज़ाम बट ऑल्सो कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ। तो उस सिलसिले में एकेडमी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि सब एक ही तरह का, मतलब एक ही गोल है ना, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। CSS की एकेडमी है तो CSS की पढ़ाई हो रही है। तो व्हेन यू सी अदर्स देन यू आर मोटिवेटेड टू डू मोर, एंड देन हो सकता है कई चीज़ें आपको ना पता हो तो डिस्कशन में यू गेट टू नो देम। तो एकेडमी इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर फॉस्टरिंग फॉस्टरिंग नॉलेज। और इस सिलसिले में अगर आप स्टार्ट करो थोड़ा सा आप लॉस या टाइम वेस्ट, एग्जैक्टली आप लेके डायरेक्शन ले लो, मेंटोर से मिल लो, 2-4-8 लोगों से गप लगा लो, देन यू नो कि यार ट्रिक्स ऑफ ट्रेड क्या है। एग्जैक्टली। सो इफ आई वर टू रीस्टार्ट, आई वुड पुट इट दैट वे, इफ आई वर टू रीस्टार्ट माय जर्नी आई वुड डेफिनेटली गो टू एन एकेडमी अगेन, राइट, at least in the start. So एक क्रूशियल रोल अदा करती है, और ऑफ कोर्स आई वुड अगेन सजेस्ट कि शुरू में आप एकेडमी में आ जाएं, शुरू में, ताकि आप बाद में ना लॉस्ट हो। और ये बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों की कि सिर्फ एकेडमी इंस्टीट्यूट पे रिलाय करके वो कहते हैं कि CSS हो जाएगा। आई थिंक
एकेडमी के बाद एकेडमी का मकसद होता है आपको इक्विप करना सेल्फ स्टडी मोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सेल्फ स्टडी आप एस्केप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेजर चंक सीएसएस में सेल्फ स्टडी है, बट फॉर दैट यू नीड डायरेक्शन, स्ट्रेटजी। यस। ओके, सो टॉकिंग अबाउट किप्स, आपने यहाँ पे अपना मॉक्स दिए, आपने यहाँ पे इंटरव्यू दिया, आपने ग्रैंड पैनल के साथ किया, डॉक्टर साहब के साथ भी डॉक्टर साहब के साथ 1-on-1 के साथ। सो कुड यू टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस एट किप्स इन ऑल ऑनेस्टी, हाउ डिड इट गो, क्या उसने हेल्प किया, नहीं किया, क्या फाइंडिंग्स थी, ओवरऑल क्या थॉट्स हैं आपके? सो डॉक्टर साहब के साथ, सो आई वाज प्राइमरीली इन्वॉल्व जब 1-on-1 सेशंस हुए थे इन द इंटरव्यू प्रोसेस। तो डॉक्टर साहब के साथ मेरे 1-on-1s हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा एक तो फ़ायदेमंद थे क्योंकि ऑब्वियसली इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड इन इंटरव्यूज़ एंड इन सर्विस। तो ही नोज़ कुछ इन्स एंड आउट्स जो कि वो आपको बता देते हैं। फिर वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जो कि बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द सर्विस एज वेल, बंदे ने कभी सोचा ही नहीं होता, बंदे ने सोचा नहीं होता। और अगेन ही थिंक्स लाइक एन इंटरव्यू वहाँ पे बैठा हुआ वुड थिंक एट FPSC। सो और ऑनेस्टली जिस तरह डॉक्टर साहब लेते हैं ना, ऑलमोस्ट वहाँ पे भी वैसे ही चल रहा होता है मामला, तो इट बिकम्स रेलिवेंट। और मेरा इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली तो इस वजह से मेरा किप्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ग्रैंड पैनल जो आपने मॉक दिया था, ग्रैंड पैनल मॉक आई थिंक मैंने नहीं दिया था किप्स के ऊपर, वो मेरा डॉक्टर साहब के साथ ही हुआ था। दो मेरे ख्याल 1-on-1s हुए थे, बट दे वर एक्सट्रीमली हेल्पफुल, तो आई डिडंट फील द नीड कि मैं ग्रैंड पैनल भी दूं। आई वाज फाइन विद दैट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ किप्स जनरली एज एन इंस्टीट्यूट फॉर CSS एस्पायरेंट्स जिन्होंने तैयारी करनी है, या जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं, पेयर कर रहे हैं? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द इंस्टीट्यूट? क्या इसकी लेगेसी है, आपको क्या पता है? व्हाट डू यू लाइक टू से? सो व्हाट आई नो, फ्रॉम व्हाट आई नो, जैसे आपने मेंशन किया लम्स के लोग थोड़े से अपने जोन में ही होते हैं, उनको थोड़ी सी बात सुन के लगता है कि हम कर लेंगे, इंक्लूडिंग दैट्स द बोथ ऑफ अस, स्पीकिंग फॉर द बोथ ऑफ अस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं किप्स की बात करूँ तो आई जनरली जितने लोग CSS की जर्नी में होते हैं ना, आई थिंक दे नो अबाउट द इकोसिस्टम अ लॉट मोर देन आई डू बिकॉज ऑफ द थिंग दैट यू मेंशन। लेकिन इफ़ यू वर टू फिगर आउट, या इफ़ यू वर टू नेम 2 or 3 इंस्टीट्यूट्स जो कि इस टाइम फोरमोस्ट हैं CSS की प्रिपरेशन के अंदर और मेंटोरशिप गाइडेंस के अंदर, तो आई थिंक किप्स इज़ वन ऑफ देम। एंड आई थिंक दैट अगर आप कोई भी इस तरह की जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो और बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, अगर आप वहाँ से एटलीस्ट एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी वहाँ से हेल्प ले लेते हैं, तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एक अनसेट जगह है जो लम्स की लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यारी आपको मिल जाती है, बाबे मिल जाते हैं, बहुत गुरुज बैठे हुए हैं, मतलब आपको जो है ना वो काफ़ी हद तक वो मतलब ब्यूटीफुल। जस्ट अ शॉर्ट आपने मेंशन किया तो जस्ट बिफोर सेकेंड अटैम्प्ट तो बिल्कुल ऐसे से पिछली रात वहाँ पे हम लम्स की लाइब्रेरी में ही बैठे थे। अच्छा। और एक साहब आए, उनकी भी सेकेंड अटैम्प्ट थी, बट ही वो सीनियर, हमसे सीनियर थे 2-3 साल। तो हम लोगों ने कुछ आउटलाइंस वगैरह बनाई हुई थी 2-3 पोटेंशियल टॉपिक्स के ऊपर, उन्होंने आके सब फेल कर दिए। उन्होंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, तो सब ऐसे हम लोग बड़ा सोच रहे थे कि यार ये क्या, टुमारो वाज द एसे एग्ज़ाम। तो मतलब लम्स की लाइब्रेरी जैसे आपने मेंशन किया, उसमें बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, तो कईयों का फ़ायदा हो जाता है आपको और कईयों का नहीं होता। इट्स योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। जैसे आपने बात की, कुछ लोग ओवरबोर्ड चले जाते हैं, लाइक दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। CSS जर्नी के अंदर वो इतना आगे निकल जाते हैं, पीर बन जाते हैं CSS के, कि एग्जाम से बियॉन्ड चले जाते हैं, वो आगे चले जाते हैं। मैं कहता हूँ तो जीनियस हुआ जिसको पता है मैंने ब्रेक किधर लगानी है। बिल्कुल। इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, नोइंग व्हेन टू स्टॉप एंड ऑप्टिमली तैयारी कोई करना, रिसोर्सेज को ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो जाना? देखिए ऑब्वियसली ये हो सकता है कि मैं जो बात करूँ इट वुड बी परसीव्ड एज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब मेरा हो गया है, तो ये भी हो सकता है कोई कहे कि यार हो गया है तो ईजिली बोल रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस हाँ ऐसे फेजेस आते हैं, बहुत डाउन्स आते हैं जहाँ इंसान सोचता है कि यार नहीं अब ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट एन एग्जाम। अगर मेरी मोटिवेशन थी टू सर्व, तो देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज़ टू डू दैट। अगर किसी की मोटिवेशन कुछ भी और है CSS करने की, तो देयर वुड डेफिनेटली बी मल्टीपल एवेन्यूज़ टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। तो आई थिंक आप ना इसको एज अ एग्ज़ाम ही ट्रीट करें, डोंट ट्रीट इट एज द एपिटमी ऑफ योर लाइफ। तो और आप इस तरह रखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई सभी से बात करके कि CSS को हम लोग ना एक एंड इन इटसेल्फ रखते हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक इट इज़ अ मींस टू एन एंड। इट इज़ अ मींस टू एन एंड। सर मैं कहता हूँ मैंने O लेवल्स किया, मैंने दुनिया घूमी, मैंने लम्स चले गए, आप मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। जितनी खूबसूरत ये 6-8 महीने थे या 1 साल था, जितना सीखने को मिला है, वो रातें, वो लाइब्रेरी, वो अकेडमीज़, वो गपशप,
I think it has transformed our personalities in ways we can't even imagine. Definitely. I think it opens up avenues. CSS ना होता तो I think जितनी grooming growth knowledge इसने दी है, we're prepared to take on anything. मतलब this is a candid interview. For example, अभी की बात कर लें तो हमने कोई बात नहीं की इससे पहले. बिल्कुल हमने इससे पहले कोई डिस्कशन नहीं की. तो it's only after this whole process कि I was confident enough कि आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं on the spot जवाब दे दूंगा. अगर मैं इस जर्नी में ना होता, उस डिस्कशन में ना होता, उन डिस्कशंस में रातों को ना बैठा होता, तो I wouldn't have been this confident. Not saying कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन जितना मैं हूँ उतना मैं ना होता. But I think it's a beautiful journey. Definitely. To prepare you for any challenge and for any exam in your life. Definitely. जो लोग अभी CSS का सोच रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जॉब्स पे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या बोलेंगे, मोटिवेशन या कोई रियलिटी बेस्ड बात कि यार क्या करें, CSS करना चाहिए नहीं करना चाहिए? What are your words? I want to know what Sabhi has to say. So I only have one thing to say, which is कि please try to figure out कि आपने ये चीज़ अगर करनी है तो क्यों करनी है, and only if it is a very strong reason in your mind, तब आप इस चीज़ में हैं. क्योंकि इट इज़ जनरली आप डिस्कशंस में बैठें, आप लाइब्रेरी जाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेल्फ स्टडी इट इज़ अ वेरी लोनली प्रोसेस एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. क्योंकि यू गिव आपने 8 महीने तैयारी की है, फिर यू गिव द एग्ज़ाम, उसके 8 महीने बाद रिजल्ट आता है, फिर उसके 5 महीने बाद इंटरव्यू आता है, उसके 4 महीने बाद रिजल्ट आता है. इट्स फॉर जस्ट वन एग्ज़ाम बहुत पेशेंस चाहिए. सो ओनली इफ़ यू आर वेरी कमिटेड टू द रीज़न और द कॉज जिस वजह से आप ये चीज़ करना चाहते हैं, तभी आप इस चीज़ में आएँ. वरना प्लीज़ डोंट ट्रीट इट एज के मतलब यही है, प्लीज़ डोंट डू दैट. और अगर आपके पास आपका रीज़न कुछ भी हो सकता है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड डिटर्मिन्ड इनफ फॉर योर रीज़न, सिर्फ तब करें. वरना देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ, प्लीज़ एक्सप्लोर दोज. कोई ऐसा मसला नहीं है. वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, मोटिवेशन, और आप डिटर्मिन्ड रहो, कंसिस्टेंट रहो. अच्छा, मैंने आपसे एक और चीज़ पूछी थी, टॉकिंग अबाउट द एग्जाम वीक. आई मीन तैयारी इज़ वन पार्ट एंड एग्जाम वीक इज़ एन एब्सोल्यूट केओस, डिज़ास्टर. और वो बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि बस हाथ टूट गया, गर्दन में दर्द, नींद नहीं पूरी हो रही. बहुत ज़्यादा लोग तैयारी अच्छी होने के बावजूद दे कोलैप्स इन द एग्जाम वीक. सो इफ़ आई रिकॉल व्हेन आई क्वालिफाइड, तो मैं कहता होता यार इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. डेफिनेटली. तो एग्जाम वीक के लिए लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, CSS के बारे में प्रिपेयर्ड होते हैं. कुड यू टेल अस अ बिट अबाउट द एग्जाम वीक एंड द प्रोसेस, उसमें कैसे सर्वाइव करना है? ये 3 दिनों में 6 पेपर्स एंड देन ऑप्शनल्स, उसके बारे में बताएं. सो द सेकेंड रीज़न जो कि शायद पिछले स्किप हो गई, तो आप यहाँ पे अब मुझे याद आ गया कि द सेकेंड रीज़न वाई यू शुड गो टू एन अकेडमी इज़ टू गिव मॉक्स. क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस की गेम है बॉस, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत. एंड स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम एन OA लेवल्स बैकग्राउंड, बिल्कुल प्लीज़ गो टू एन अकेडमी फॉर मॉक्स, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर टू राइट मतलब इतना ज़्यादा 3 घंटे का एग्ज़ाम और दिन में 2 एग्ज़ाम. वी कैन नॉट अटेम्प्ट दैट बिकॉज वी हैव नॉट बीन ट्रेन टू डू सो. तो एग्ज़ाम वीक तो मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है यार. थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो रियलिटी चेक थोड़ा सा इनको पता होना चाहिए, ताकि इनको भी पता हो कि यार है क्या ये. सो मैंने 2 अटैम्प्ट्स दिए हैं. तो दूसरी अटैम्प्ट तो फरवरी में थी, तो मेरी पिछली अटैम्प्ट वाज 2022. आई एम ओनली गिविंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो उस वक्त हीट वेव आई हुई थी, एग्ज़ाम्स डिले हो गए थे, तो मैंने हीट वेव में एग्ज़ाम्स दिए हैं. और मतलब मैं शलवार कमीज़ में अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो अमूमन गर्मी में हम कफ्स रोल करते हैं, जैसे मैंने अभी की हुई हैं. तो हम कफ्स अनरोल कर लेते थे क्योंकि पसीने की वजह से एग्ज़ाम पेपर फट जाता था. और इतनी गर्मी, आई हैव सीन पीपल ब्लैकिंग आउट अनकॉन्शियस होते हुए. लेकिन वो गर्मियों की बात थी, लेकिन सर्दियों में भी इट इज़ वेरी टफ़. और 3 घंटे आप लिख के फ़ारिग हुए, मतलब हाथ दुख रहा है, और फिर 2 घंटे की ब्रेक है एंड देन यू हैव टू राइट फॉर अनदर 3 आवर्स. तो इट इज़ वेरी टफ़. मतलब द ओनली थिंग दैट आई वॉज अफ्रेड आफ्टर माई फर्स्ट अटैम्प्ट वॉज, ये नहीं था कि मुझे तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी या कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा. मुझे सिर्फ ये था मुझे वो 6 दिन दोबारा गुजारने पड़ेंगे. वो बहुत मुश्किल वक्त है सर, लेकिन दैट टीचेस यू सो मच. और वही बात है, जो डिटरमिन्ड है, जिसकी कॉज स्ट्रॉन्ग है, वही सर्वाइव कर सकता है. बट उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें. इट इज़ गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ राइड. डेफिनेटली. तो उसके अलावा सभी एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से, एनीथिंग दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आप ज़रूर शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ? सो मेनी पीपल विल बी वेटिंग फॉर दिस वीडियो एंड दे वुड लाइक टू हियर योर थॉट्स. एनी अदर थिंग? सो आई वुड, कोई दिल की बात, कोई आपका एक कैंडिडेट किस्म की जो दिल कर रहा है, बता दें ज़रा. आई वुड इस चीज़ को यूज़ करते हुए आई वुड लाइक टू रीआइटरेट दोबारा से कि प्लीज़ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर डूइंग इट. बिकॉज
to go through such a tedious and long process, you definitely need a motivation factor to keep you going. अगर आपके पास वो नहीं होगा ना तो you will break down बीच में, because it is a lonely और process. ये मोमेंट्स आते हैं जब बंदा कहता है यार क्या मैं किस में पढ़ गया हूँ, मोटिवेशन दोस्त वहाँ चले गए हाँ हैं, जी, कोई अब्रॉड निकल अमेरिका लग गया, फलां लग गया, मैं किधर ख्वार हो रहा हूँ. तो unless अब कोई बहुत पैसे कमा रहा है, अगर आपके पास genuinely एक बहुत strong reason for yourself नहीं है ना तो मुश्किल हो जाता है ये चीज़ को navigate करना. तो प्लीज़ अपना रीज़न फिगर आउट कर लें और उसके अलावा मेरे लिए दुआ करें प्लीज़ कि अच्छा काम करने की तौफीक दे अल्लाह. और इंशाल्लाह इफ़ यू हैव अ गुड मोटिवेशन टू डू इट, आई प्रे फॉर यू कि आप लोगों का इंशाल्लाह हो जाए व्हाटएवर इज़ बेस्ट फॉर यू. ग्रेट. सो वी वुड रिक्वेस्ट सभी के हमारे पास ऑन एंड ऑफ एज गेस्ट स्पीकर भी आते रहें, और किसी को कोई हेल्प चाहिए या किसी को कोई सपोर्ट चाहिए, so we can always connect them to Sabi. Always. He'd be more than happy to help. अब तो लम्स का भी कनेक्शन निकल आया है तो obviously is gonna उसका भी वो रिगार्ड करेंगे. तो thank you so much for watching this video, and hopefully we will be recording another episode very soon for all of you. Thank you Sabi for taking out time and sharing your honest, brutal and very candid thoughts and words, which will inshallah turn out to be extremely helpful for everyone. Inshallah. और we'll keep seeing you. ख्याल रखें और thank you so much Sabi once again. Inshallah. Take care. Allah Hafiz.